اللہ الرحمن الرحیم. آج مسلم لیگ کی مرکزی قیادت کا ایک اجلاس یہاں منعقد ہوا جو 6 گھنٹے سے زائد جاری رہا. اس میں مسلم لیگ کے قائد محمد نواز شریف صاحب نے بھی شرکت کی. اس کے علاوہ تمام صوبائی صدور بھی اس اجلاس میں موجود تھے. جنرل سیکرٹری احسن اقبال صاحب بھی تھے اور دیگر مرکزی قائدین نے بھی اس میں شرکت کی. اس اجلاس میں جو پی ڈی ایم کی لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کا موقف ہے اس بیانیے کے بارے میں، جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس کے بارے میں، دسکا کے الیکشن کے بارے میں اور دیگر معاملات زیر بحث آئے. تو میں مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ان معاملات کی جو تفصیلات زیر بحث آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. شکریہ. تھینک یو شاہد خاقان عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے، انتظار کیا. جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا کہ میٹنگ بہت لمبی تھی. 6 گھنٹے سے زائد 2 بجے یہ میٹنگ شروع ہوئی اور اب کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اب 8 بج رہے ہیں. تو تقریباً 6 گھنٹے کی میٹنگ تھی. اور میاں نواز شریف صاحب لندن سے اس کو میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے، چیئر کر رہے تھے. حمزہ شہباز شریف صاحب اور پنجاب کے دیگر قیادت، کیونکہ آج بلاول صاحب کو حمزہ کے ساتھ ان کا میٹنگ تھی تو وہ نہیں آ سکے، تو رانا ثناء اللہ صاحب، حمزہ صاحب اور پنجاب کی دیگر قیادت جو تھی وہ انہوں نے بلاول صاحب کی میٹنگ کو ختم ہونے کے بعد ہمیں آن لائن جوائن کیا یہاں پر زوم پہ. اس کے علاوہ پارٹی کی ساری جو تمام سینئر قیادت تھی وہ یا یہاں پر فزیکلی موجود تھی یا زوم پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. تو جیسے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اس میں بہت امپورٹنٹ چیزوں پر ڈسکشن ہوئی، جس میں سب سے پہلے تو لانگ مارچ پہ ڈسکشن ہوئی، ڈسکا کے بائی الیکشن پہ ڈسکشن ہوئی، اور جو کراچی میں ایک سیٹ ویکنٹ ہوئی ہے NA 249، اس پہ بائی الیکشن کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اس کے کینڈیڈیٹ پہ ڈسکشن ہوئی. اور اس کے علاوہ اور کچھ میں مس آؤٹ تو نہیں کر رہی جس پہ ہوئی؟ جی، ڈسکا پہ ہوئی. اس کے علاوہ جو کل پارٹی کے لیڈران کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، احسن اقبال صاحب کے ساتھ، مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے ساتھ، خرم دستگیر صاحب کے ساتھ اور مصدق ملک صاحب کے ساتھ جو کل طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا میڈیا کے کیمراز کے سامنے، اس پہ بہت غصے کا بھی پارٹی کے اندر اظہار کیا گیا اور اس پہ بھی بات ہوئی اور پارٹی اس کو لائن ڈاؤن نہیں لے گی. یہ میں کل بھی کہہ چکی ہوں. مسلم لیگ نون کو اب وہ اخلاق اور تہذیب کا جو سبق دیتے ہیں وہ اپنا بھاشن اپنے پاس رکھیں. کسی طرح بھی سینئر قیادت کی اس طرح سے تذلیل برداشت نہیں کی جائے گی کرائے کے چند گنڈوں کے ہاتھوں. مجھے پرسنلی میں نے اس کو لیا ہے جس طرح آپ نے میرے بڑے بھائی، میرے لیڈر شاہد خاقان عباسی پہ اٹیک کیا، جس طرح آپ نے احسن اقبال صاحب پہ اٹیک کیا، جس طرح آپ نے پاکستان کی بیٹی مریم اورنگزیب پہ اٹیک کیا، جس طرح آپ نے سینیٹر مصدق ملک پہ اٹیک کیا. یہ آپ کو اس کا بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی. اور آپ 2 تھپڑ ماریں گے، ہم آپ کو 10 تھپڑ ماریں گے. مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ جو کل بدماشی کی گئی، خصوصاً مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، وہ ہر مسلم لیگی پر، ہر مسلم لیگ نون کے شیر پہ قرض ہے جس کو ادا کرنا مسلم لیگ نون اچھے سے جانتے ہیں. اور آخر میں جو یہ بھی بہت ہماری جو اعتماد کا جعلی ووٹ لینے کے بعد جو صورتحال پولیٹیکل
लैंडस्केप एक बना है, पॉलिटिकल सूरत हाल बनी है, उस पर भी बहुत तफसील के साथ बातचीत हुई। चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी बातचीत हुई और उसमें सबका ये कंसेंसस था कि जिस तरह से कल धौंस और जबर और गुंडागर्दी से कल एतमाद का वोट लिया गया, पाकिस्तान की एजेंसीज़ को इस्तेमाल करके, पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल करके, जिस तरह कल एतमाद का ज़बरदस्ती गर्दनों पर, अपने ही अरकान के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आइनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है, ना कोई इखलाकी हैसियत है। जिन अरकान ने आपके ख़िलाफ़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन में वोट किया, सिर्फ 2 दिन बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना फ़ैसला बदल दिया। फ़ैसला बदला नहीं, फ़ैसला तब्दील कराया गया है। और जिस मुज़हिका ख़ेज़ अंदाज़ में वो फ़ैसला तब्दील कराया गया है, जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा, कल कहा कि पूरे पार्लियामेंट लॉजेस को आपने बंकर बनाया हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे शुमाली वज़ीरिस्तान का कोई इलाका है। पूरी रात आप सूली पर लटक कर अपने MNAs गिनते रहे। ड्रोन कैमरा से एक MNA की आपने निगरानी की। पहली मर्तबा हुआ कि किसी जमात के अपने सरबराह के ख़िलाफ़ उसकी जमात ने अदम एतमाद कर दिया, जबकि वो पावर में हो। आप इमेजिन करें ज़रा, ये हाल है। ये उसके अलावा है जो चारों सूबों से इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद का आवाम की जानिब से, न सिर्फ अदम एतमाद का बल्कि गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है, ये उसके अलावा है। और जिस तरह से इसमें एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया गया, जिस तरह उनकी मदद ली गई, जिस तरह उन्होंने अरकान को गायब किया, मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारे ज़ाती इल्म में आया है। इनके MNAs हमसे इन टच हैं। ये हमारे ज़ाती इल्म में आया है कि 2 MNAs को जो राज़ी नहीं हो रहे थे आखिरी वक्त तक इनको वोट देने पर, उनको गोलड़ा के एक इदारे के कंपाउंड में ले जाया गया। वहाँ पर 4 घंटे एक कंटेनर के अंदर बंद रखा गया और उनको मजबूर किया गया एजेंसीज़ के लोगों के हाथों कि वो इमरान खान को वोट दें। तो मुझे ये बताएं कि इसको तो किसी इतनी शर्मनाक शिकस्त के बाद, ये सिर्फ शिकस्त नहीं है बल्कि आपने पाकिस्तान की एजेंसीज़ को आपने जिस तरह इस्तेमाल किया, जिस तरह आपने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ को अपने लिए इस्तेमाल किया, ये बहुत काबिल शर्म बात है। क्या एजेंसीज़ पाकिस्तान में इसीलिए रह गई हैं? क्या यही उनका रोल होगा अब कि जिस शख्स को अवाम धुतकार रही है, जो अवाम का मुजरिम है, जिसने उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी है, आप उस शख्स को बचाने के लिए आप अपने इदारे को सियासत में झोंकते? इसका जवाब पाकिस्तानी कौम को चाहिए, इसका जवाब मुस्लिम लीग नून को चाहिए, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और कहाँ है उस शख्स की इज़्ज़त, कहाँ है उस शख्स की गैरत जो कहने को तो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है, लेकिन एजेंसीज़ को ये कहता है, एजेंसीज़ के सरबराहों को ये कहता है कि मेरे अरकान से ज़बरदस्ती मुझे वोट ला के दो। इसको तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये कोई अपने आप को झूठी तसल्ली या तिफल तसल्ली दे रहा है। वो अपने आप को तिफल तसल्ली भी नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि उसको ये पता है कि उसने किस तरह ये एतमाद का वोट लिया है। उसको ये पता है कि अगर वो अपने ओन पे होता तो उसको कोई वोट ना पड़ता। उसको ये पता है कि अगर एजेंसीज़ उसकी हेल्प ना करती और एजेंसीज़ के किरदार उसके हेल्प ना करते तो वो बुरी तरह नाकाम होता। लेकिन एक हारे हुए शख्स को, एक नालायक और नाअहल शख्स को, कौम के मुजरिम को बचाना, इसका जवाब आपको कौम को देना पड़ेगा और इसका जवाब कौम मांगेगी। दूसरा जो इलेक्शन का रिजल्ट
जो एतमाद का वोट एजेंसीज़ को इस्तेमाल करके गर्दनों पर तलवारें रख के अपने ही अरकान को अगवा करके अपने ही अरकान को हब्से बेजा में रख के अपने ही अरकान को जिस तरह वो कहते हैं कि इनएक्सेसिबल करके ज़बरदस्ती जो वोट लिया जाए, इसका मतलब ये है साफ अल्फाज में, अगर मैं उसको एक सेंटेंस में सम अप कर दूं, इसका मतलब ये है कि इमरान खान, you know that your time is up. You know that it is over for you. दूसरी बात ये कि जो NA 249 है, मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री पार्टी के अरकान भी मौजूद थे और सबकी राय में जब ये सब ने अपनी अपनी राय दी, उसमें सबका कंसेंसस मिफ्ता इस्माइल साहब पे था और कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद नवाज शरीफ से साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब को NA 249 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट अनाउंस किया। तो बाकी जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है सदर पार्टी के, वो उनकी टिकट जारी करेंगे अभी इंशाल्लाह। तो ये फैसले आज हुए हैं। कोई सवाल आपका? मैडम ये बताइएगा कि चेयरमैन साइड के हवाले से भी बात डेफिनेटली हुई होगी, 12 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, क्या मुस्लिम लीग नून इस ओहदे के लिए यानी कि डिप्टी चेयरमैन के लिए अपना कोई उम्मीदवार लाएगी या यूसुफ रज़ा गिलानी की सपोर्ट करेगी उसी तरह चेयरमैन? जी बिल्कुल, इस पे बहुत लेंथी डिस्कशन हुई है। हमारी पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है और वो इंशाअल्लाह ताला कल PDM के जो मीटिंग है उसमें अनाउंस होगा सबके कंसेंसस के साथ। ये भी कल इंशाअल्लाह PDM में ये डिस्कस होगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। मुस्लिम लीग नून छोटी रेस का घोड़ा नहीं है, बड़ी रेस का घोड़ा है। थैंक यू। उनको सवाए एजेंसीज़ की कोई बात की ना समझ आती है, ना वो एजेंसी से ऊपर या आगे निकल कर कुछ सोच सकते हैं। उनके सारे काम एजेंसीज़ करती हैं, वो एजेंसीज़ की ही बलबूते पे आज तक यहाँ बैठे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बदतमीज़ी इन्होंने कल की, मुझे तो वो वक्त याद आ गया जब हमें भाषण दिया करते थे इदारों पे तनकीद का। आपने शायद कल वो प्लैकार्ड्स नहीं देखे जो इनके गुंडों ने और बदमाशों ने उठाए हुए थे उस अहाते में। उसमें इलेक्शन कमिश्नर को नेकेड गालियाँ लिखी हुई थी। तो आवाम इनका चेहरा देखे। हमने अगर कभी कोई बात की है वो हमने फैसलों पर माने, लेकिन तनकीद की वो हमारा हक है। इदारों पर तनकीद नहीं की, किरदारों पर तनकीद की है और एक डिसेंसी के बाउंड्स में रहकर, प्रॉपरिटी के बाउंड्स में रहकर हमने तनकीद की है। लेकिन अब आपको पता चला है कि बदतमीज़ किसको कहते हैं, माफिया किसको कहते हैं, सिसिलियन माफिया किसको कहते हैं और गुंडागर्दी किसको कहते हैं। प्लैकार्ड्स पे ECP के चेयरमैन के ऊपर गालियाँ लिखी हुई थी। तो क्या अब बाकी इदारों को ये नज़र नहीं आ रहा? और दूसरी बात आपने जब की एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट की कल के इलेक्शन में, तो ये बात मैं आपको बता दूं, आप इसको मजाक समझे हैं तो ये ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी हैं। कि एक आप ये देखें कि जो ले पालक बेटा है एजेंसीज़ का, जिसको औलाद कहते हैं, बेटा जो है, जो बेटा बचाओ मुहिम हमने कल देखी, उसके लिए मैदान खाली था, वो अकेला ही दौड़ रहा था, अकेला दौड़ रहा था, रेस में अकेला ही खिलाड़ी था, फिर भी वो नहीं जीत सका, फिर भी उसको सिलेक्टर्स के कंधों पे बिठा के जिताया गया।
تو جو انسان اگر کھیل کے میدان میں اکیلا ہو وہ تب بھی نہ جیت سکے تو ایسے انسان کو تو شرم سے اقتدار چھوڑ دینا چاہیے. آخری کوشچن پلیز. کہ 23 نہیں بہت زیادہ ہے اس سے. تعداد میں آپ کو ابھی تو نہیں بتاؤں گی انشاءاللہ. دیکھیے جب اس ملک میں جب ظلم کا آپ اس کو حد سے جب گزر جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں. جس طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب بولے, جس طرح ارشد ملک صاحب بولے, جس طرح باقی لوگ بولیں, انشاءاللہ تعالی سب بولیں گے اور بول رہے ہیں. بس آخری کوشچن پلیز. ایک سیکنڈ بس ہو گیا. دیکھیں پنجاب میں اگر کوئی انشاءاللہ اگلی حکومت آئے گی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی. شکریہ.